Hello and welcome back to the International Counterterrorism Conference 2020. I hope you all are refreshed and excited for this session, which is titled Misuse of Islam for Terrorist Propaganda. Now, I would like to start by introducing our speakers for this session, Dr. Imam Umar Ahmad Ilyasi. He is the Chief Imam of All India Imam Organization, which is a voice of 500,000 Imams of India, who happens to be the religious and spiritual guide of around 210 million Indian Muslims. Further, to chair this session, we have amongst us Ms. Prabha Rao ma'am. She is a retired IPS officer and Executive Council member of Global Counterterrorism Council. She has served in various intelligence and law and order postings and also went on deputation on Cabinet Secretary, Government of India. I request you, ma'am, to take over the session and all the attendees to turn off your microphone. A very warm welcome to you, Dr. Imam. Yeah. It is a great honor for me to interact with you on this very important subject, and that too considering you are the spiritual guide for so many of our Muslim brothers, and what you say today is going to be of great importance for us and for the larger Muslim community whose spiritual head you are. Yeah. It is with this that I want, we discussed, in the GCTC, we discussed on what topic to give. And we said that we should have a topic which relates to how Islam is being misused for terrorism, which will not only give us, give the, well, I shouldn't say us, but I mean the Hindus a feeling of how things are being misused, because it is important for them to know. It is also important for the Muslims, our Muslim brothers and sisters, to know how their religion is being misused, to stop people from falling into unwitting traps. Therefore, we feel that of all the sessions we have held today, this is perhaps the most important session that we have. So, Dr. Ilyasi, without further ado, I would request you to please give your very valuable thoughts on this subject. Sure. मैं सबसे पहले, चूंकि मैं भारत में रहता हूँ और मेरी जो भाषा है वो मेरी मातृभाषा, मेरी राष्ट्रभाषा वो हिंदी है, तो मैं हिंदी में ही। बिल्कुल ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी तो, सब हम इंग्लिश में कर रहे थे, इसलिए हमने अंग्रेजी में बोल दिया, लेकिन आप प्लीज बेशक आप हिंदी या उर्दू में बोलिए। जी, आप मुझे आप दोबारा से हिंदी में या आप दोबारा से इस बात को कहेंगे? जी, आपका सवाल। तो नहीं, सवाल नहीं, पहले आप अपना राय दे दीजिए इस मुद्दे पे, और उस पे हम वार्तालाप कर लेंगे। क्या आपका सवाल था? मुझे दोबारा से बता दें आप प्लीज। नहीं, सवाल नहीं, हमने कहा कि किस चीज पर देनी है मुझे बताएं। ये जो सब्जेक्ट है, मिसयूज ऑफ इस्लाम फॉर टेररिज्म, हाँ। जो दुरुपयोग, इस्लाम का दुरुपयोग आतंकवादी लोग करते हैं, हाँ। इस मुद्दे पर अगर आप अपना राय देंगे, हाँ। तो हम बहुत आभारी होंगे। बिल्कुल, हम जरूर देंगे। आप अपना राय दे दीजिए, आप उसके बाद हम वार्तालाप शुरू कर लेंगे, हम मतलब दूसरे पैनलिस्ट के साथ। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं सबसे पहले मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं और हमारे जितने भी लोग जिस प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, मैं सबको मैं सलाम पेश करता हूं, और मैंने सबसे पहले आपको बोलूंगा अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको सलाम इसलिए किया कि इस्लाम में सबसे पहले मैंने आपको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। डज़ मीन कि अल्लाह ताला ईश्वर आपको सलामत रखे, मैंने आपको दुआ दी है। उसके बाद आपने मुझे, सबने जो सुन रहे हो उन्होंने कहा मुझे वालेकुम अस्सलाम, तो वापस जवाब मिला कि ईश्वर अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। तो जिस इस्लाम की बुनियाद सलामती से हो, जिसकी शुरुआत दुआ से हो, तो आपने दो चीजें मुझे रखी हैं, एक तो आपने रखा है टेररिज्म और एक रखा है इस्लाम। तो इस्लाम एक अलग चीज है, टेररिज्म अलग चीज है, तो दोनों को मिलाया नहीं जा सकता, दोनों उसके बिल्कुल अपोजिट हैं। पहली बात तो मेरी जी, ये भी हमारा सोच भी ऐसे ही है,
बस हम तो बोल रहे हैं कि जैसे ये आतंकवाद लोग जी इस तरह के खुतबा में बातें करते हैं और कहते जी हैं ये कुरान शरीफ में है, जी कहते हैं कि ये वो बोलते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है नासिक व मुनासिब, मतलब जो बाद में आया हुआ सूरास है उसमें ज्यादा महत्व है। और जो पहले देखिए, मेरा हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, अब मैं माफी मांगूंगी आपसे। और वो प्रीवियस प्रीवियस जो सूरास है वो मतलब वो बोलते हैं कि मक्का का जो सूरास है वो इतना प्रमुख नहीं है जितने वो मदीना का सूरज है, वो ऐसे ऐसे बोलते हैं। और आप जानते हैं कि इस तरह की मतलब वो पिक एंड चूज करके, मतलब एक एक वाक्य, एक एक लफ्ज यहाँ वहां से पिकअप करके कुरान शरीफ से वो उसका दुरुपयोग करते हैं। तो हम आपसे पूछते हैं कि आप हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को क्या सलाह देंगे, आप इस पर आप क्या विवाद कर सकते हैं? मैं अब पहली बात तो मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों को नहीं, मैं हर एक इंसान को अपना पैगाम देना चाहता हूं, जी जी क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। वी सबसे पहले हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। ये जी धर्म तो हमारा बिल्कुल। सबका बाद में आता है। हमारा जी सबसे बिल्कुल। पहला जो धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। हम जी आप मेरी बहन है, मैं आपका भाई हूं, और जितने जी भी इस दुनिया में भाई इंसान हैं वो सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। आस्था हमारी सबकी अलग जी हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं अलग हो सकती हैं, हमारी जातियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसान का और इंसानियत का धर्म हमारा है। तो हम चाहते हैं कि इंसान और इंसानियत का जो धर्म है हमें उसी पर जी बात करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में सबसे पहले या अय्युहन्नास, अल्लाह तबारक व ताला अगर मुखातिब हुआ तो या अय्युहन्नास, हे इंसानों। उन्होंने ये नहीं है कि हे मुसलमानों, यहाँ पर सब बात, चूंकि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, वो आए रहमतुल लिल आलमीन बन के पूरी दुनिया के लिए, और रहमतुल लिल मुस्लिमीन के लिए नहीं आए। इसी तरह से पूरी अल्लाह ताला की कायनात सारे इंसानों के लिए है। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर खत्म करते हैं कि हमारा कोई फर्क नहीं है, वी आर वन, हम सब एक ही हैं, हम सब एक दूसरे से भाई, हमारा आपका रिश्ता है। जहां तक ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुरान को उसका इंटरप्रिटेशन जिस तरह से किया है, वो उन्होंने अपनी आसानी के लिए क्या किया है मुझे नहीं मालूम। मुझे ये मालूम है कि कुरान पीस का मैसेज देता है, इंसानियत का मैसेज देता है। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि आप इस बात को समझ लीजिए कि इस्लाम का मायना ही पीस का है, सलामती का है। तो तशद्दुद और टेररिज्म उसके साथ आ ही नहीं सकता। पहली बात, ये लोग जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इनोसेंट लोगों को बम से उड़ा देते हैं और लोगों को मार देते हैं, मैं इनको इंसान नहीं कहता, मैं इनको शैतान कहता हूं। शैतान, ये मेरी निगाह में शैतान है जो तशद्दुद फैलाए, इनोसेंट लोगों को मारे, डिस्ट्रॉय करता है। वो इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान के अंदर तो एक हमदर्दी होती है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, दया होती है। शैतान डिस्ट्रॉय करता है। तो बेसिकली दे आर शैतान। हमें इनकी बातों में नहीं आना है, हमें इंसान और इंसानियत की बात को करना है। बिल्कुल सहमत, हम लोग आप बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, या आप सीरिया को देखिए, या अफगानिस्तान को देखिए, या अभी तो ये शोक की बात है लेकिन कश्मीर में भी देखिए, इब्न तामिया का जो कहना है, इब्न तामिया का जो स्टेटमेंट्स है वो तो उनके मोबाइल्स पे मिले हैं। जो जो मतलब मर चुके हैं इनकाउंटर में, जो 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 मिले हैं सीरिया में, वो इब्न तामिया का जो जो वो उन्होंने कहा है वो सब कुछ वो टेक्स्ट फॉर्म में उनके पास है। वो कहते हैं कि ये सलाफी के बिल्कुल मतलब बेसिस है, ये उनका बुनियाद है। आप समझ सकते हैं, ये तो बिल्कुल बुनियाद है। तो और दूसरी बात है, हमेशा रमजान के टाइम पे वो तो द वर्स ऑफ द स्वॉर्ड, जो 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 कुरान के वर्स ऑफ द स्वॉर्ड है वो ले आते हैं। अब देखिए,
अभी वर्स ऑफ द स्वॉर्ड अगर आप अकेले में देख ले हैं तो एक और मीनिंग हो जाएगा उसका, तो पूरा मीनिंग तो देखते नहीं है, बस वर्स ऑफ द स्वॉर्ड लेके वो दे देते हैं और सारे खुतबा में दे देते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि लोगों का क्या प्रभाव होगा ये, बिकॉज ये फ्राइडे के खुतबा पे ऐसे ऐसे करते हैं। इसीलिए हम आपका असेसमेंट चाहते हैं कि ये इब्न तामिया का आप एक असेसमेंट दे दीजिए। आप सलाफियों का जो जो है उनका उनका जो क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है उनका पूरा असेसमेंट दे दीजिए। मैं सबसे पहले ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि एक मिनट इस तरह के जो बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, इस तरह के जो लोग हैं, जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं उनसे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि कुरान को जब तक आपने पढ़ोगे नहीं, कुरान तो आपको बचाने की बात करता है, प्यार की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, दया की बात करता है, रहम की बात करता है, करम की बात करता है। तो वहां पर जो इस तरह की जो कंटेंट्स निकाल कर जिस तरह की ये बातें हो रही हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूं। दूसरी बात यह है कि अगर ये लोग, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अभी अभी आपको मालूम है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लश्कर ए तैयबा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जैश ए मोहम्मद। अब आप ये सोचिए कि अगर जो लोग मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनका नाम लेकर उनकी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने जैश ए मोहम्मद बनाई, लश्कर ए तैयबा बना दिया। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लश्कर ए तैयबा? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जैश ए मोहम्मद? तो मोहम्मद की सेना, मोहम्मद का लश्कर, क्या मोहम्मद के नाम को इस्तेमाल करने का अधिकार उनको है क्या? जो इनोसेंट लोगों को बम से उड़ाएंगे और तमाम डिस्ट्रॉय कर देंगे पूरी दुनिया को, क्या ये मोहम्मद का मैसेज है क्या? क्या इस्लाम का मैसेज है क्या? क्यों ऐसा? मैं तो ऐसे लोग, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जो हमारे मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, उनके उनके जो जो उनके उनको बदनामी इस्लाम की होती है, तो मैं तो उनके सबके खिलाफ हूं। मैं कहता हूं एज ए चीफ इमाम भारत होने के नाते मैं इसको बिल्कुल अथॉरिटी से ये बात कह रहा हूं, आज आपके सामने आपके चैनल से कह रहा हूं कि मेरी बात सुन ले वो तमाम सारी ऑर्गेनाइजेशन जो इस्लाम के नाम पर, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके नाम पर जो तशद्दुद फैला रहे हैं, उनका हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। हमारा ताल्लुक मोहम्मद की पैगाम, प्यार का, मोहब्बत का, सबको साथ लेके चलने का पैगाम है। किसी को कहीं पे आप साबित कर दीजिए कहीं से कि मोहम्मद साहब ने या कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कहां पर किसी को मारने की बात करी है। हाँ, अगर उसमें आप छोटा सा कोई कंटेंट्स निकाल लें, मिसाल के तौर पर शराब पीना जायज हो गया, उसमें एक है शराब पीना जायज है, कहां जायज है? उस सिचुएशन में कि अगर आपकी जान गई, आपको पूरा जब तक आपको उसका पूरा नहीं पता पढ़ेंगे कि भाई नमाज नहीं पढ़नी है, अगर आप कुरान से उतना शब्द ले लेंगे कि कुरान में कहते हैं नमाज नहीं पढ़नी, आप जब तक उसके आगे से पीछे से उसके पूरे उस पर नहीं जाएंगे कि वो किस कंटेंट्स में, कि आखिर वो क्यों कहा गया नमाज नहीं पढ़ना, कहाँ है वो हुक्म नमाज का। तो ये सब चीजें हमारे पास आज जो इस्लाम को बदनाम हो रहा है, आज हमारी जिम्मेदारी बन गई है एज ए इमाम। हमारे हिंदुस्तान के अंदर 5.5 लाख इमाम है। मैं आज आपको बता दूं, इंडिया इज द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ पूरी दुनिया के अंदर है, और हिंदुस्तान की जो 5.5 लाख मस्जिद है दुनिया में कहीं नहीं है। तो हम, भारत जो है एक ऐसा देश है जहां से हमेशा से हम प्यार का, मोहब्बत का पैगाम गया। भारत का जो मुसलमान है वो बिल्कुल डिफरेंट मुसलमान है, वो बहुत फ्लेक्सिबल मुसलमान है। तो मैं आज इस पर आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम को समझना है तो इस्लाम को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि कम से कम कुरान को और हदीसों को दोनों को मिला के पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप कुरान को और हदीस को दोनों को मिला के नहीं पढ़ेंगे, आप इस्लाम को समझ नहीं पाएंगे। ये अधूरा ज्ञान जो है वो हमेशा नुकसान करता है, चाहे वो किसी के लिए भी हो। तो अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं है। Prabha ma'am, you are on mute.
तो क्या आप पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉ के बारे में कुछ बता सकते हैं? आप प्लीज कुछ बता दीजिए। पाकिस्तान का क्या बताया आपने, क्या सवाल किया? वो जो ब्लास्फेमी लॉ है ना, लॉ अगेंस्ट ब्लास्फेमी, हाँ, उसमें क्या है वो आप देखिए, ये बोलते हैं कि अपोस्टेसी इज अ वेरी सीरियस क्राइम, इट्स अ क्राइम पनिशेबल विथ मतलब सजाए मौत है अपोस्टेसी के लिए, इसीलिए वो ब्लास्फेमी लॉ ले आए हैं। तो ये हाँ और वो बोलते हैं कि अपोस्टेसी जो अब मतलब सजाए मौत अपोस्टेसी के लिए ये कुरान का एक इंटेग्रल पार्ट है, इंटेग्रल हिस्सा है, इसीलिए हाँ। वो बोलते हैं कि हम इसको नहीं निकाल सकते, और वो ब्लास्फेमी लॉ लेके आए हैं। तो आप प्लीज इसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए क्या है कि हर हमारे देश, पाकिस्तान भाई बहनों को प्लीज पैगाम दे दीजिएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस पाकिस्तान को ही मैं पैगाम नहीं देना चाहता, भारत तो पूरे विश्व को पैगाम देना चाहता है। ये भारत का इमाम, चीफ इमाम पूरे दुनिया को देना चाहता है पैगाम। पाकिस्तान तो बहुत छोटी बात है, लेकिन पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए। ये बात आपकी सही है कि हमारे भारत से पाकिस्तान को जरूर सीखना चाहिए। भाई मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान अपने क्या क्या कानून बनाता है ये उसका अपना निजी मामला है, लेकिन शरीयत के मुताबिक हम ये कहना चाहते हैं कि दया का जो भाव है, रहम का जो भाव है, माफ करने का जो भाव है, उसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हो आप, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमने तो देखे हैं कि आपको ये पता है कि क्रिश्चियन लोगों का कितना प्रॉब्लम हुआ है वहां पर, हिंदू लोगों का कितना प्रॉब्लम है, वो आप जानते ही है। वो सजाए मौत दे देते हैं, और अभी नहीं आपको देनी पता चाहिए, है। नहीं देनी चाहिए, मैं इसका ऐलान कर रहा हूं कि नहीं देना चाहिए। जी, ये तो बिल्कुल आपने जो कहा है, इसको तो मैं समझती हूँ कि हम जीसीटीसी की तरफ से हम इन लोगों को ट्वीट देना चाहिए, फेसबुक पे देना चाहिए कि ये आपका राय है कि इस तरह की सजाए मौत बिल्कुल गलत है। हमारे भी हम लोगों का भी यही सोचना है ना। हम इतने खुश हैं आप, हम लोग इतने आपकी बात सुन के, मैं क्योंकि आपको दोबारा से पता। अपनी बात को दोहराता हूं, भारत का चीफ इमाम ऑफ इंडिया होने के नाते मैं पाकिस्तान को भी और तमाम पूरी दुनिया को यह बता देना चाहता हूं कि हमें हमें कुरान के मुताबिक, हदीसों के मुताबिक, अल्लाह के जो फरमान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फरमान है, वहां पर हमें चलना है। हमारा दूसरों से प्यार करो, सब पर रहम करो। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का गोया कत्ल बताया जा रहा है। तो एक जी दूसरे पर रहम करो, एक दूसरे के दया भाव आपके अंदर आना चाहिए। जब आप एक दूसरे से रहम करेंगे, अल्लाह आप पर रहम करेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि माफ करने वाली जो प्रक्रिया है, ये तो हम कुरान के अंदर बार बार है, माफ करो, माफ करो, माफ करो, दया करो, रहम करो। ये करेक्टर है अल्लाह तबारक व तआला का बार बार कुरान के अंदर। तो इसीलिए ये लोग अगर दया नहीं करेंगे, ये लोग रहम नहीं करेंगे, तो इनके ऊपर सब पर अजाब आएगा। क्योंकि देखिए, हम तो आपको ये उदाहरण बताना चाहते हैं, ये सैमुअल पैटिस, ये जो टीचर जो बिहेड हो गया है पेरिस में। हम भी मानते हैं कि किसी भी धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जो किया है वो गलत है। लेकिन जब वो सैमुअल पैटिस का तो बिहेडिंग हो गया, तो पाकिस्तान में वो फादर ने कहा कि उनके बेटे ने ठीक किया है, और इसमें आपको पता है कि कितना सपोर्ट मिला है पाकिस्तान में। जैसे ये वो जो मुमताज कादरी का कितना सपोर्ट मिला था पाकिस्तान में। इस तरह की जो है, इस तरह की सेंटिमेंट्स जो है वो पाकिस्तान से इंडिया में भी अगर फैल जाए, तो हम इसको कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हमें इंडिया में पहली बात तो आपको ये समझना है कि हमें पाकिस्तान से कुछ हमें ज्ञान नहीं चाहिए। भारत पूरे विश्व को ज्ञान देता है, पाकिस्तान को तो हमारे भारत से ज्ञान लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो बहुत समझदार और फ्लेक्सिबल मुसलमान है। हिंदू के साथ, ईसाई के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, ज्यूज के साथ
सारे धर्मों के साथ एक साथ रहता है और उसको हर चीज का मालूम है, वो बहुत मॉडरेट मुसलमान कहलाता है अपने आप को पूरी दुनिया के अंदर। चूंकि वो जानता है कि वो हमें दूसरे की कैसे इज्जत करनी है, क्योंकि कुरान भी यही फरमाता है। कुरान के अंदर भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। तो हमारे यहाँ हमें भारत से सीख लेनी चाहिए, पाकिस्तान को खास तौर पर। अगर पाकिस्तान को मजहबी मामले में भी अगर आगे बढ़ना है तो मुझे लगता है कि भारत से ही सीख लेनी चाहिए उसको। इमाम साहब, हम आपको फिर एक रिक्वेस्ट कर लेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है कश्मीर में। आपको पता है कि कश्मीर के बॉर्डर पे, ठीक है, वो इन्फिल्ट्रेशन के लिए वो आ रहे हैं लोग, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन से और भी खतरनाक एक चीज है, वहां पर वो लोग कैंप्स बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये विष फैलाने के लिए, वो फेक न्यूज फैलाने के लिए, उस तरह की इस्लाम के बारे में, कुरान शरीफ के बारे में गलत फहमियां फैलाने के लिए वहां पर कैंप्स चला रहे हैं, लीटी कैंप्स चला रहे हैं, जेईएम कैंप्स चला रहे हैं। और इससे हमारे जो युवक है, कश्मीर के युवक वहां पर बहुत ही प्रभावित हो चुके हैं। और ये देखिए, ये सच बात है कि वो प्रभावित हो चुके हैं। तो आप हमको बता दीजिए हमको कि कैसे इस तरह को हम कंट्रोल करें। क्या हम खुतबा में बोल सकते हैं कि इस तरह की बात आप मत दोहराओ? क्या हम बोल सकते हैं मस्जिदों को कि इस तरह की फ्राइडे सरमन में आप मत बोलो? क्या हम फ्राइडे सरमन्स को कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? ये आप मैं आपसे ये थोड़ा नाजुक प्रश्न है, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि हमें पता है कि हमारे प्यारे पड़ोस कैसे कैसे क्या कार्य कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले तो कश्मीर के मामले में बता दूं, कश्मीर भी हमारा, कश्मीरी भी हमारा। वो तो और है। जहां वो तो है। तक पड़ोस की बात है, तो पड़ोस को तो ये बात अब समझ लेनी चाहिए। अब ये समझ लेनी चाहिए कि भारत का जो ऑक्युपाइड कश्मीर जो उनके पास है पीओके, अब तो वापस भारत के अंदर वो शामिल होना है। अब तो उसकी बात होनी चाहिए। भारत के जो मुसलमान हैं, भारत के जो कश्मीरी हैं, भारत के, मैं कश्मीरियों को अलग नहीं कहता, मैं कश्मीरियों को भारत का ही हिस्सा इसलिए कह रहा हूं कि हमें जब कश्मीर कहते हैं तो उनको लगता है कि शायद वो अलग है। वो हमसे अलग नहीं है, वो भारत के ही मुसलमान हैं। हाँ, भारत के मुसलमान है। तो मैं लोग भारत के मुसलमानों से, हमारा अभिन्न अंग है। तो मैं अपने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी मेरे मुसलमान हैं, मेरे जितने भी भारतवासी हैं, बेसिकली ये मुसलमान भी हम नहीं कहना चाहिए, सब लोग भारतवासी हैं। हम सब भारत के लोग हैं, तो हम वी आर भारतीय। हमको वी आर प्राउड, वी आर भारतीय, हमें भारतीय होने पर गर्व है। और हम भारत, इसलिए हम भारतीय हैं। और इसलिए हमें सबको मिलकर चाहिए कि पीओके अब वापस भारत में शामिल होना चाहिए, क्योंकि वहां पर वो पीओके जबरदस्ती वहां पर उन्होंने लिया हुआ है। और अभी जिस तरह की एक्टिविटीज पीओके में करके लोगों को बरगलाते हैं, तो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपने मुझे बहुत अच्छा सवाल किया है कि मस्जिदों के माध्यम से ही तब्दीली और बदलाव आ सकता है, क्योंकि हमारी वहां पर 3,500 मस्जिदें हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की 3,500 मस्जिदें हैं कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में। तो उन सब वैल्यूज में मिलाकर अगर हमारे इमाम्स को, अगर हमने उनको सही गाइड करा और इमाम्स के थ्रू एक अच्छा फ्राइडे सरमन्स में बात चली जाए, तो मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा प्रभाव होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ये तो आपने इतने अच्छे बात किया है, मुझे लगता है कि एक और फेसबुक और एक ट्वीट और भी पूरा विश्व में हम जीसीटीसी को डालना है कि ये बिल्कुल आपने जो कहा है सही बात कहा है कि आप मतलब अमन के रास्ते पे जाओ। इस तरह की मतलब इस तरह की खुतबा डा करने से सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारे मुस्लिम भाई बहनों को हो रहा है, और इससे क्या मतलब है? तो ये आपने बिल्कुल सही बात कहा है। एक और नाजुक सवाल है अगर मैं पूछूं तो। Sure. देखिए, अभी देखिए सीरिया और इराक में
ज्यादातर सीरिया में और अभी कुर्दिस्तान में भी हमारे कई भाई बहन हैं जो गलत रास्ते पे गए हैं, जो वहां पर पकड़े गए। अभी तो काफी चर्चा हो रहा है क्या हम उनको वापस भारत लेके आ जाए या हम वहीं पर छोड़ दे, वो वहां पर वहां की इंसाफ भोगने के लिए क्या करें। क्योंकि देखिए अभी वो तो गलत रास्ते पे गए हैं, वो तो गए हैं, वो तो जंग में भाग लिए हैं। कई लोग जंग में नहीं लेकिन गए हैं, मतलब वैसे वैसे फंस गए हैं, जो भी है वो वहां पर है। उनका तो काफी ब्रेन वॉश हुआ होगा, हमें वो भी पता नहीं कि उनका ब्रेन वॉश कितना कितना हुआ है कि नहीं हुआ है और कितने वो डेंजरस है, वो हमें पता नहीं। लेकिन ये एक समस्या हुआ है, क्या हम उन लोगों को वापस ले आए या हम उनका क्या करें, क्या किया जाए। अगर हम उनको वापस ले आए, क्या हम उनको आराम से सोसाइटी में फिर से शामिल कर सकते हैं। क्योंकि जी मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग जो गुआंटानामो बे से बाहर आए हैं, जो सीरिया से बाहर आए हैं, यूरोप में, इंग्लैंड में और इवन अमेरिका में, वो 6 महीने के बाद फिर से वो आतंकवाद के रास्ते पकड़कर उन्होंने काफी दंगा वंगा किया है। तो ये मतलब ये तो थोड़ा मॉरल डायलेमा हो गया है हम लोगों को कि अब बताइए आपका राय क्या है इस। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा आपने सवाल किया है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आपने कहा कि उनका कोई ब्रेन वॉश करता है। मैंने माना कि उनका कोई ब्रेन वॉश करके उनको नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है, शैतानियत की तरफ ले जाता है। हमारे पास मेजॉरिटी है अच्छे लोगों की, ऐसे इमामों की जो उनको ब्रेन वॉश करके पॉजिटिविटी की तरफ ला सकते हैं। इमाम ही है जो बदलाव ला सकता है कम्युनिटी के अंदर। फेथ लीडर्स ही है, चाहे वो मंदिर का पुजारी हो, चाहे वो गुरुद्वारे का ग्रंथी हो, चाहे वो चर्च का फादर हो। अगर फेथ लीडर्स अपना सही इंपॉर्टेंट रोल अगर प्ले करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो धर्म का और ये सब खत्म होके इंसानियत वाली जो बात है वो ज्यादा महत्व होगा। अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है एज ए इमाम, मैं चीफ इमाम होने के नाते मैं इसके लिए कहता हूं कि अभी जो बाकी जो लोग चले गए उनका क्या होगा, ये तो अभी उनके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। उनको अभी हम इतना जल्दी से बुलाकर उनका सही कर पाएंगे हमें नहीं मालूम। लेकिन बाकी लोग खराब ना हो जाएं, उनकी उसको हमें बचाने का सबसे जरूरत है आज। क्योंकि आज ऐसे लोग हैं जो गलत रास्ते पर ऐसे भड़काओ, ऐसे गलत लोगों के चुंगल में आके कहीं गलत चीजों पर ना चले जाए, तो उनको भी हमें सही करना है। उसकी जिम्मेदारी इमामों की है, गवर्नमेंट नहीं करती है, गवर्नमेंट का काम नहीं है ये समाज का काम है। समाज के उन लोगों का काम है जो समाज सुधारक हैं। समाज सुधारक बोले तो फेथ लीडर्स बोले तो इमाम। तो इमाम जो है अपने खुतबों के अंदर, भारत के अंदर 5.5 लाख मस्जिदें हैं। अगर मस्जिदों के माध्यम से हर खुतबों के अंदर, हर जुमे की सर्मन्स में, अगर फ्राइडे सर्मन्स में अगर हम ये पैगाम देंगे तो मुझे लगता है कि उसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। ब्रेन वॉश अपने आप हो जाएगा। ये जो गलत रास्ते पे लोग जा रहे हैं उनको ये बताना है कि ये इंसानियत का रास्ता नहीं है, वो शैतानियत का रास्ता है। तो इंसानियत का रास्ता है बचाने का नाम, मारने का नाम शैतान का होता है, बचाने का नाम इंसान का होता है। तो इसलिए ये फर्क बताना होगा और इस्लाम के बारे में सही गाइड उनको करना होगा। क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर आज इस्लाम इसीलिए बदनाम हो रहा है क्योंकि हमारे जो फेथ लीडर्स हैं, इमाम्स हैं, वो आगे नहीं आ रहे हैं डर की वजह से। क्योंकि उनको डर है कि उनका कत्ल हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैं निकल के आया हूं, मैं फर्स्ट इमाम, मैं ऐलान कर रहा हूं, चीफ इमाम होने के नाते, भारत का इमाम होने के नाते मैं ऐलान करता हूं, मैं आगे आया हूं। अब आप सब हमारे साथ अब इस तरह से सब लोग लेके निकलेंगे तो हालात और मामला बहुत जल्दी बदल जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद मानता हूं। इमाम साहब, तो हम आपसे एक और पूछे कि हम आपकी ख्यालात को आगे कैसे बढ़ाएंगे। मतलब हम सब लोगों को मिलकर आपके साथ काम करना है, आप आगे कैसे बढ़ाएंगे। आप एक प्रोग्राम को बता दीजिए ताकि हम लोग आपके साथ मिलके ये पैगाम हम पूरे भारत में हम फैला सके।
हमें ना मतलब हम वी कैन स्प्रेड दिस वर्ड अराउंड, वी कैन एक्चुअली वर्क विद दिस। क्या हम कुछ वर्कशॉप्स करें कि कैसे करें वो आप बता दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल टेररिज्म के लिए, जो काउंसिल बनी है, हमारे जो जी जो रेस्पेक्टेड आदित्य चिक्कू जी हैं, मुझे लगता है कि ये इन्होंने एक जिम्मेदारी ली है। और अगर ये जिम्मेदारी हम सब मिलकर एक साथ इसको अगर अलग अलग प्रोग्राम्स में हर स्टेट्स में अगर जाएं, तो मुझे लगता है कि सेमिनार्स करें, और वो प्रोग्राम्स हमारे ऑडिटोरियम में नहीं होने चाहिए। मेरा पहला सलाह यह है, हमारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज मैं करके दूंगा सारा आपको, या तो मस्जिद के अंदर प्रोग्राम्स हो या फिर मदरसे के अंदर प्रोग्राम हो, जिससे कि हमारी बात और बड़े लेवल पर और उन तक बात को पहुंचाई जाए, और जगह जगह और पूरे भारत में अगर ऐसा हो तो मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा प्रभाव होगा। मैं हम सोच रहे हैं कि अगर हम ये प्रोग्राम मदरसे में शुरू करें तो मतलब यंग माइंड्स है उन वहां पर काफी प्रभाव होगा। बिल्कुल, क्योंकि आप भारत के अंदर अगर हम आपके साथ मिलके एक एक वर्किंग प्लान बना दे तो ये बहुत अच्छा होगा। अब हम देखिए, कश्मीर में भारत भी के कर अंदर सकते हैं, यूपी में कर सकते हैं। प्रभा जी, आपको मालूम है कि भारत के अंदर 7.5 लाख मदरसे हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा मदरसे भारत के अंदर हैं। 7.5 लाख मदरसे कोई छोटे नंबर्स नहीं होते हैं। अगर हम वहां पर हमारे नौजवान बच्चे आने वाला फ्यूचर है, अगर हमने उनके बीच में अगर काम मिलके किया, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बड़ा बदलाव इसलिए होगा क्योंकि मदरसे से जो बच्चा निकलेगा वो आने वाला इन फ्यूचर में इमाम होगा, तो उसका उसका जहन उसी तरह से बनेगा, तो मुझे लगता है कि उसका प्रभाव बहुत होगा। जी जी बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं। देखिए, आप मुझे बता दीजिए कि जो सिंजियांग में हो रहा है चीन में, जी, ये ये कैसे हम इसका असेसमेंट हम कैसे करें? क्योंकि चीन बोल रहे हैं कि ये लोग आतंकवादी बन सकते हैं, जो हम नहीं मानते हैं, क्योंकि सारे जन लोग तो आतंकवादी तो नहीं बन सकते, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो ये कैसे देयर इज अ थिन लाइन, और वो कहते हैं कि हम री एजुकेशन कर रहे हैं। अब अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो वो बोल सकते हैं कि आप लोग भी तो री एजुकेशन करने की कोशिश में है, आप लोग भी इस तरह की मदरसे में जाके कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, तो आप हम पर क्यों निंदा करते हैं? इस तरह की वो बोल सकते हैं। इनफैक्ट देखिए, इस तरह के बोले हैं। तो मैं आपसे इसीलिए मैं आपको पूछ रही हूँ कि आपकी असेसमेंट क्या है जिंजियांग के बारे में? देखिए, चाइना आज से नहीं, चाइना बहुत जमाने से मुसलमानों पर बड़ा जुल्म कर रहा है। दरअसल उसका जुल्म दरअसल इतना हो गया है, क्योंकि दे आर कम्युनिस्ट, उन लोगों वो दे आर नास्तिक, दे आर नॉन बिलीवर्स, वो तो नास्तिक लोग हैं। उनके हाथ तो धर्म नाम की चीज नहीं है, ना इंसानियत नाम की चीज है, ना कोई रहम है, ना कोई दया है, ना कोई धर्म है। तो जब काम उनके पास धर्म नहीं है, तो वो लोग जो है जिस तरह से उन्होंने, अभी हमने बहुत सारे टीवीज पर बहुत सारी जगह पर देखा है कि जिस तरह से वो बड़ा जुल्म हो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि चाइना को इससे और पूरी दुनिया को अब खड़ा होना चाहिए चाइना के खिलाफ कि ये जो इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा है। इन मुसलमान का नाम नहीं लेना है प्रभा जी, हम ये कहते हैं कि किसी भी इस इंसान के ऊपर कोई जुल्म करता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी है, क्योंकि इंसानियत के नाते, इंसान होने के नाते वो हमारा भाई बहन है। तो इसीलिए हमें धर्म से नहीं जोड़ना है कि मुसलमान है, हमें इंसानियत है, इंसान है, उस पर जुल्म हो रहा है, तो उसके लिए हमें आवाज सबको बुलंद करनी चाहिए। जी बिल्कुल। आपकी जो पैगाम है इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देख लीजिए अभी सीरिया और इराक से काफी जो लोग जो है वो वापस साउथ एशिया की तरह आ रहे हैं। अभी नगार्नो कराबाख में जो जंग हुआ है वहां पर भी ये काफी लोग, ये मतलब ये आईसिस के लोग और अलकायदा, देखिए अलकायदा और आईसिस के बीच में जो अंतर है ये बहुत छोटा अंतर है, वो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ डिग्री। सब लोग एक ही टाइप का है, वो हमें नहीं है। तो आप बताइए, तो ये लोग आए हैं नगार्नो कराबाख से,
मतलब अजरबैजान तक आ गए। अजरबैजान से पाकिस्तान आने के लिए इतना दूर रास्ता तो नहीं है। तो वो पूरा ब्रेन वॉश होके, इतने सारे लोग हैं जो ब्रेन वॉश होके वो तो वहां पर आ रहे हैं। देयर इज द रिवर्स माइग्रेशन इनटू अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं। और अब पाकिस्तान में आपको पता है कि ये FATF के वजह से और बाकी दे वांट टू शो दैट दे आर टेकिंग एक्शन। इसीलिए अगर वो प्रेशर करे तो मुझे लगता है कि वो कश्मीर की तरह आंख मोड़ लेंगे या बाकी भारत की तरह आंख मोड़ लेंगे। इसीलिए जो हम आपसे विनती कर रहे हैं कि जो आप प्रोग्राम जो हमने डिस्कस किया, इस तरह के प्रोग्राम हम जल्दी शुरू कर दे, क्योंकि ये प्रोग्राम स्पेशली बॉर्डर एरियाज में, कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह में, मध्य प्रदेश और साउथ इंडिया में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग वापस आ रहे हैं। आपको पता है कि मालदीव्स में इतने सारे लोग हैं जो अभी आईसिस में थे, अलकायदा अल नुसरा में थे वगैरह। वो सब लोग तो वो कह रहे हैं कि आप वापस लेके जाओ, आप अपने नागरिकों को वापस लेके जाओ, हम नहीं रख सकते हैं। तो वो आएंगे, कौन एस्केप हो जाएंगे, कौन साउथ इंडिया तक आ जाएंगे, हमें पता नहीं। तो ये सिचुएशन पे आप इसीलिए मैंने आपको पूछा कि क्या एक्शन ले इन लोगों को अगर वो वापस आ जाए। क्या हम उनको दया करुणा दिखा सकते हैं, या हमको बोलना है कि भाई आपने तो गलती किया है, ये आपको तो आप अपने गलती का आप तो भुगतना पड़ेगा, और आप अंदर जाइए, और आप आप इतने रेडिकलाइज हो गए हैं, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। और एक एक ये बात है। दूसरी ये बात है कि आपको अपने प्रोग्राम जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, क्योंकि अब तो आप सबसे ज्यादा जरूरत आप जैसे लोगों की जरूरत है। मैं प्रभा जी आपकी बात से सहमत हूँ। अब चूंकि अभी वो लोग जो है इधर की तरफ आएंगे, ये बात सही है, खतरा नजर आ रहा है, लेकिन हमें खतरे से मुकाबला करना है, हमें उनसे डरना नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, अभी हमें उनको वापस बुला के उनके साथ दया भाव नहीं करना है, वो दया भाव से और नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें अपने प्रोग्राम्स जो है हमें अपने करने हैं कि आगे से हम किस तरह से उनका मुकाबला करें, उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। उनको माफ करना, उनको साथ करना, वो कितना बदल जाएंगे हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें उनको यहाँ से, क्योंकि किसी तरह से हमारे भारत को या हम तो पूरे विश्व की बात करते हैं, क्योंकि भारत तो हमेशा से वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, और आज ग्लोबल विलेज की बात हो रही है, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। तो मुझे लगता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां से पूरी दुनिया की बात होनी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि ये टेररिज्म जो है ये पूरी दुनिया से खत्म होना चाहिए। हमें भारत के लिए नहीं कर रहे, हम पूरे विश्व के लिए भारत एक मॉडल बनेगा, और हम चीफ इमाम भारत पूरी दुनिया के लिए मॉडल बनेगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो इनफैक्ट आपकी बात सुन के मैं आई कैन नॉट टेल यू, आई मीन इट इज सो रीअश्योरिंग आपकी बात सुन के। तो क्योंकि हम सब लोग तो हमारे मुस्लिम भाई बहनों के साथ हमारे तो काफी मतलब सहमत है। वी आर लाइक फैमिली। तो हमको तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब लोग अंदर ले आने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए आपके बात सुन के तो इट इज ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। अब बस हम आपको एक लास्ट पूछेंगे कि आप एक जबरदस्त पैगाम जो है हमारे हम सब लोगों के लिए अपनी तरफ से प्लीज दे दीजिए, एक पैगाम जिसपे हम आगे हम ले सकें। और एक आप अपनी टाइम पे अगर आप एक प्रोग्राम तय करा सकते हैं तो हमारी तरफ से जितना हम हेल्प कर सकते हैं वो हम करा देंगे। लेकिन आप अभी एक पैगाम दे दीजिए। आई हैव टू रियली थैंक यू फॉर। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ हमारे आदित्य टिक्कू जी का, इनके ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजर्स का, और तमाम जितने प्रभा जी आपका और तमाम सब लोगों का, कि हमने कम से कम ये इनिशिएटिव लिया है। इनिशिएटिव लिया है ना, तो शुरुआत हुई है। जिस चीज की शुरुआत होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि उसे आगे मंजिल तक पहुंचना है। तो हम सब उसका पार्ट हैं, हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ेंगे, नंबर एक। दूसरी बात यह है
कि कोरोना का कोविड-19 की ये महामारी पूरी विश्व में फैली हुई है। तमाम इस समय पूरी दुनिया परेशान है, बहुत लोग मर रहे हैं। मैं तो सबसे पहले यही सबको संदेश, सबको पैगाम भी यही देना चाहता हूं कि आज के वक्त में ऐसा समय तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो आज हम सब मिलकर, आज हम एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे की मदद करें। आजकल जो प्रॉब्लम्स है, सबको मालूम है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कोविड-19 के बाद से, तो हम एक दूसरे के लिए मदद करें। खास तौर पर मैं अपने पड़ोसी की जरूर मदद करूं। मेरे पड़ोसी लेफ्ट हो, राइट हो, सामने हो, पीछे हो, मैं अपने ये जरूर कर सकता हूं कि मैं अपने दोस्तों से, मैं अपने पड़ोसियों से, वट एवर पड़ोसी माई हिंदू, वट एवर पड़ोसी माई क्रिश्चियन, वट एवर ज्यूज, वट एवर सिख, मैं अपने पड़ोसी से सबसे पहले उनसे अच्छे रिश्ते रखूं, उनके पास पूछूं कि भाई आपको दवाई चाहिए, आपकी कोई जरूरत है, आपको कोई प्रॉब्लम है। हम जरूर, अगर हर व्यक्ति ये काम करेगा, अपने पड़ोसी के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाएगा, तो मुझे लगता है कि हम सब एक बड़ा काम करेंगे। और दूसरी बात, मैं अपनी बात को यही खत्म कर रहा हूं दुआ के साथ, कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला पूरे दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम करे। अल्लाह तबारक व तआला जितने बीमार हैं सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जितने इंसान जहां परेशान है, अल्लाह सबकी परेशानी दूर फरमाए। जितने इंसान जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको खुशियां और कामयाबी अता फरमाए, सब पर रहम और करम फरमाए, सबकी जरूरतों को गैब से पूरा फरमाए। ये मैं दुआ करता हूँ इमाम होने के नाते, चीफ इमाम होने के नाते। और लास्ट में एक नसीहत करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ प्रभा जी और मेरे जितने लोग, एक मेरी रिक्वेस्ट, एक नसीहत है ये मेरी इमाम होने के नाते। आपको मालूम है कोविड-19 बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, तो इसमें हमें खुद भी बचना है, दूसरों को बचाना है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। जैसे भी आप कभी भी देखें एम्बुलेंस, आजकल मैं एम्बुलेंस बहुत देख रहा हूं, जैसे ही एम्बुलेंस जाती हो, उस एम्बुलेंस रो रही है, उसका जो साउंड है वो रो रहा है कि इसमें कोई बीमार जा रहा है। मुझे नहीं मालूम प्रभा जी उसमें मेरा कौन सा भाई है, मेरी बहन है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पता है कि मेरा कोई भाई बहन इसमें बीमार जा रहा है। हम हाथ उठा के और जब भी एम्बुलेंस को देखें दुआ जरूर कर दें, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे परमात्मा, जिसमें आपकी आस्था उसके लिए दुआ कर दें कि इसमें जो भी एम्बुलेंस में बीमार जा रहा है उसे शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा नेकी और कोई नहीं हो सकती। आप जब निस्वार्थ किसी के लिए दुआ मांगेंगे, निस्वार्थ जब किसी के लिए दुआ मांगेंगे, वो दुआ जरूर लगेगी, क्योंकि वह ईश्वर और आपके बीच में, उसको मालूम नहीं है जो जा रहा है कोई तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। तो जब निस्वार्थ दुआ मांगेंगे वो जरूर ठीक होगा। हमें ये दुआ का क्रम जारी रखना है, सबका भला करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।